Now, yesterday, Jagdeep Dhankar caught unawares by admitting the motion against Justice Verma. Let's take a look as to how things proceeded. I need to inform you that I have received notice of motion under Article 217, 1B, read with Article 218 and Article 124, Sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 31B of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma. With that, viewers, we have some exclusive information that's coming in. Maushami Singh joined us on the broadcast to bring us that. Maushami, if you can hear us, what exactly are you picking up at this given point? See, clearly, this entire resignation row has come as much of a surprise, or you can say puzzlement to the opposition members as well. And if you look at the timeline, because yesterday the Vice President Jagdeep Dhankar, the chairman of the Rajya Sabha, was conducting business as usual. There was a business advisory committee meeting that was rescheduled yesterday for 4:30 p.m. and the opposition members reached for that business advisory committee meeting. It's called the BAC meeting, that is set up to deliberate the business that is to be conducted in the upper house. But who didn't come? The members of the ruling party. Mr. Nadda and Mr. Rijiju were not there. They didn't attend the meeting, and so the meeting was rescheduled for 10 a.m. today. So that BAC meeting of the Rajya Sabha was rescheduled because Mr. Nadda, who is the leader of the Rajya Sabha, wasn't there at 4:35 p.m. at the chamber of the chairman. So this had been brewing for a while, and we are told that there was a flurry of activities in the parliament. I was there till 6:30 in the evening yesterday, where there was a lot of activity at Rajnath Singh, the defense minister's office, with BJP MPs coming in and out. Apparently, many of them told us that they had signed on a paper. But right now we are joined by one MP of the opposition who was one of the last people to meet the chairman, and that is Mr. Akhilesh Prasad Singh, who met the chairman yesterday at 5:36 p.m. in the house. Akhilesh ji, कल आप चेयरमैन साहब से मुलाकात आपने की, क्या आपकी बातचीत हुई और क्या लगा कि क्या ये आखिरी बार होगा बतौर चेयरमैन आप उनसे बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। एज यूजुअल जैसे लोग मिलते हैं, और हमसे पहले से उनके चैम्बर में जयराम रमेश जी बैठे थे, प्रमोद तिवारी जी बैठे थे, और हम लोगों से जो यूजुअली जैसे वो मिलते हैं, सबसे अपनापन के किए से उनका मिलना जुलना होता है, सबको चाय पानी पूछते हैं। तो कल भी वही सब बात हो रही थी और अच्छे मूड में थे। ये भी मैं नहीं कह सकता कि थोड़ी भी तबीयत खराब जैसी कोई बात नहीं थी, और हम सबको अचंभा में डालने वाला ये समाचार है, और मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ और बात होगी। क्या चर्चा हुई कि तबीयत को लेके विस्तार से बताइए कि क्या चर्चा हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जस्टिस वर्मा का केस जो लोकसभा राज्यसभा में 50 से ज्यादा सिग्नेचर जो हुए थे, उस सब पे चर्चा कर रहे थे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई। बाकी जो नॉर्मल बिजनेस का चर्चा करते हैं वही बात हो रही थी, कोई अलग बात हुई नहीं। क्या वक्त हो रहा था उस वक्त? और मुझे ये भी बताइए, आपने मेंशन किया था कि कमेटी की भी बात की उनने, कि कल परसों में आपको बताएंगे, कमेटी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आगे कल परसों बताएंगे, इस तरह की बात? नहीं, कमेटी की चर्चा तो मतलब यूजुअल रूटीन मैटर है, वो करते रहते हैं, और वो भी चर्चा कर रहे थे। आज का फिर ये कर रहे थे कि उनका कंसर्न था कि हाउस अच्छे से चलना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। कोई ये हाँ बिल्कुल कोई ऐसी बात थी नहीं। कानून के जानकार हैं,
और वो अच्छा से कंडक्ट करते थे। हमको लगता है कि राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं चाहता होगा और इस न्यूज से सब लोग दुखी होगा। पर अखिलेश जी ऐसा क्या घटा, क्योंकि आप लोग तो इम्पीचमेंट उनके खिलाफ लाए थे, क्या विपक्ष के साथ उनकी जो करीबियां बढ़ रही थी, आप कह रहे कि कोई नहीं चाहता कि वो हटे, आप ही लोग उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाए थे, तो ये 5-6 महीने में ऐसा क्या घटा कि धनखड़ साहब विपक्ष के भी सबसे फेवरेट हो गए? नहीं, फेवरेट होने का वजह एक तो सबके लिए कंसर्न रहते थे, सभी के सुख दुख के भागीदार होते थे। छोटा से छोटा ये में अगर उनको पता चले कि किसी मेंबर की तबीयत खराब है, खुद फोन करते थे, सबका समाचार लेते थे, लोगों को मदद करने की कोशिश करते थे। तो इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष का कोई मामला नहीं है। ह्यूमन लेवल पे अच्छे आदमी थे, मैं जो फील किया वही मैं बोलूंगा, और वो सबके साथ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यसभा में सिर्फ विपक्ष का ये नोटिस एडमिट हो गया और उसको लेकर भी सरकार काफी सेंसिटिव थी, क्योंकि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों थे, आप लोग ने गुगली चल दी राज्यसभा में? ये सच नहीं है। वहाँ भी सेक्रेटरी जनरल को हम लोगों के सामने बुला के कह रहे थे कि पता करिए कि लोकसभा में आया है कि नहीं आया है, और जब तक लोकसभा में नहीं आता तब तक उस पर वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। ये भी बताया जा रहा है कि 4/7 पे धनखड़ साहब ने राज्यसभा में लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, उसमें ये सूचित किया कि ये एडमिट नोटिस आया है, लोकसभा में भी आया है, मेघवाल साहब से भी पूछते हैं और आगे की प्रक्रिया की बात। हाँ, तो यही बात कर रहे थे उस समय भी, हम लोगों के सामने भी उन्होंने यही बात कही कि लोकसभा में और ये होता है, सो मीटिंग जरूर चेयरमैन के यहाँ होता है, कोई भी इस तरह की मीटिंग, तो पहले लोकसभा में आया कि नहीं आया खुद सेक्रेटरी जनरल को बुला के हम लोग के सामने ही पूछ रहे थे। सरकार से कुछ तनाव की बातचीत या कोई बात जिसको लेके आपको लगता है टेंशन बनी हो? मतलब उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से जरूर आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री जी को इंटरवेन करना चाहिए और उनको पद पर बने रहने को कहना चाहिए। आपके बाद कोई सांसद मिलने गया, कोई विपक्ष का सांसद? नहीं, अभी इसकी जानकारी मुझे कैसे हो सकती है। हम लोग जब मिल रहे थे तो उसी समय जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी थे जिनका कल वोट हुआ था, वो भी कॉल ऑन करने आए थे, सिंगला साहब। दिलचस्प बात है, शुक्रिया अखिलेश जी हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। इट्स इंटरेस्टिंग दैट मिस्टर अखिलेश, as he pointed out, met Mr. Dhankar. Post that, we are told that at 7:30 Jairam Ramesh did give him a call regarding some work of the Rajya Sabha, and he said he was with his family and would talk tomorrow. Now, what brewed in between those 2 hours when Mr. Dhankar put in his resignation, as he said that he pointed out to his ill health, but members who met him yesterday thought that he was hale and hearty and ready to transact and conduct the business of the House the next day. Right, Maushmi, thank you for bringing us all those details.